Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosif sir, and today we are going to start a new unit number 14, natural resources. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 8 यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने डिस्कशन जो है वो ख़त्म किया था, और इस लेक्चर से वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 14 विच इज़ अ यूनिट फ्रॉम द लाइफ साइंस सेक्शन ऑफ साइंस. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let us start our unit introduction, natural resources. Life forms on earth need ambient temperature, water and food. पृथ्वी के ऊपर जो भी लाइफ फॉर्म्स है यानी कि जीवित संसाधन है, उन सभी को एक मध्यम तापमान, पानी और फूड, ये तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी बहुत ही ज़रूरी है. It also utilizes resources and energy available from the sun. The various kind of plants, vegetables and flora utilizes the energy from the sun to prepare their own food. So, in such a way, they are utilizing the solar energy. Then after, which kind of resources are present on the earth? There are mainly three major natural resources on the earth is present, among which the first is land, second is water, third is air. So these are the three resources which are present on the earth. Air we breathe, water we drink, and useful amount of substances that we are getting from the land. First is lithosphere. The outermost crust of the earth is called the lithosphere. यानी कि अर्थ का एक ऐसा भाग कि जहाँ पे बाहरी कोना जो है अर्थ का, उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर एक ऐसा भाग है कि जहाँ पे हम यूजफुल सब्सटेंसेस, हमारे फूड के लिए जो है उसे उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें से मिनरल्स भी मिलते हैं. ठीक है. सो इन सच अ वे इट इज़ अ वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स और इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्फीयर ऑफ आवर अर्थ. सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर. The water covers 75% of Earth's surface and also found underground. This is called hydrosphere. पानी जो है वो पृथ्वी की सतह के 75% को कवर करता है, यानी कि 100 भाग में से 75 भाग पे पानी फैला हुआ है, और साथ साथ में अंडरग्राउंड में भी इसे फाइंड किया जा सकता है, यानी कि जो पानी है वो भूगर्भ के अंदर भी होता है. This sphere is called hydrosphere. Then after, atmosphere. The air that cover the wall of earth like blanket is called atmosphere. यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा का एक स्तर है कि जो एक पृथ्वी के लिए ब्लैंकेट का काम करता है, उस स्फीयर को कहा जाता है एटमॉस्फियर. Then after, बायोस्फीयर. The three major sphere included in the layer or in the sphere is called biosphere. The atmosphere, lithosphere and hydrosphere interact and make life possible is known as biosphere. यानी कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ये तीनों स्तर, वातावरण, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के इंटरेक्शन से जो लाइफ पॉसिबल बनती है, इन सभी का समावेश एक स्तर के अंदर होता है जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है. तो आइए चलिए इसमें से सबसे पहले स्तर का जो मेन कंपोनेंट है एयर, उसके बारे में बात करते हैं. द मेजर नेचुरल रिसोर्स एयर, जैसे कि हमने पढ़ा था
wait a second. Land, water and air. So let us talk about air, the breath of life, यानी हमारे जीवन के श्वास जहाँ से हम लेते हैं वो हवा. Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and many other gases. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो स्टूडेंट, हवा जो है वो अलग अलग वायुओं का मिश्रण है. उसमें मेजर कंस्टिट्यूट जिस गैस का है वो नाइट्रोजन है. सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है एंड रिमेनिंग गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर ऑल्सो. On Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of atmosphere is found to be carbon dioxide. Venus और Mars ऐसे दो प्लैनेट्स है कि जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल या तो उसके होने की संभावनाएं नहीं है. उसका एक कारण है कि वहाँ के वातावरण के अंदर जो मेजर कंपोनेंट जैसे हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन है वैसे ही वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है. So tell me students, in the presence of carbon dioxide gas, is the life forms can respirate? No, my dear students, they are not. So that is why it is not possible that life forms will exist. 95 to 97% CO2 is present in the Venus and Mars atmosphere. So this is the biggest reason that is why the life forms is not exist on that sphere planet. So let us talk about the another gas CO2 which is present inside the air. Basically CO2 produced in two ways. दो तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड का सर्जन होता है. The first is human respiration. पहला तरीका है इंसान यानी कि लोग जो श्वास लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते हैं तभी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. सो हमें मालूम है कि हमारी जो पॉपुलेशन है हम हर मिनट में कितनी बार इनहेल और एक्सेल करते रहते हैं. सो उतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलिंग होता रहता है. नोट डाउन करना इस पॉइंट को. सेकेंड है कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उसके कंबंशन से आउटपुट प्रोडक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलता है. कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये दो तरीके थे कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है. फर्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेशन and second is combustion of fossil fuels. But dear students, as we know that the major proportion of gas inside the atmosphere is of nitrogen, and at the second place it is of oxygen, and at the third place the carbon dioxide comes into the picture. Near about it is available carbon dioxide is available near about 0.5 to 1%. So as we know that the all human life forms are exhaling the carbon dioxide gas as the part of respiration. So per day कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक तो एग्जॉस्ट होता है हम इंसानों की वजह से. दूसरा है कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि रोजमर्रा में आप जो भी वाहन देखते हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या तो बड़े बड़े व्हीकल्स हो, तो उन सभी में से निकलने वाला धुआं जो है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है. और हमें मालूम है कि शहरों के बढ़ने के कारण वातावरण के अंदर CO2 का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है. लेकिन फिर भी मेजरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है. तो उसका भी रीज़न है. Why or what is the reason? The reason is the CO2 fixation. मतलब जितना CO2 का प्रोडक्शन है उससे कई ज़्यादा उसका कंजप्शन है. तो अब आपको आश्चर्य होगा कि सर कौन ऐसा लोग है
कि जो CO2 को कंज्यूम कर दे। हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स that as a part of respiration, plants or flora are inhaling the carbon dioxide gas and exhaling the oxygen. So जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज है, वेजिटेबल्स है, या तो फ्लोरा जिसे कहो आप, तो वो सभी जो है एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी तादाद अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। So the first way to fix the carbon dioxide from atmosphere to any life form is green plant utilize it in a respiration. इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जब भी होता है या तो वृक्षों को, पेड़ पौधों को काटा जाता है तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है। इसका एक असर हमारे पृथ्वी के ऊपर ये भी होता है कि जो CO2 को फिक्स करने वाले एलिमेंट्स है, जो CO2 को एटमॉस्फेयर में से कंज्यूम करने वाले एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स को ही हम काट रहे हैं, उसका ही विनाश कर रहे हैं। सो आगे जाके ऐसा होने की संभावनाएं हम नकार नहीं सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ती जा रही है, और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे सारे रीजंस अराइज हो रहे हैं। The second fixation way of the carbon dioxide is marine animals, which utilize carbonates dissolved in seawater to make their shells. Marine animals जितने भी होते हैं वो सी वाटर यानी कि समंदर के पानी के अंदर जितने भी कार्बोनेट्स डिजॉल्व होते हैं, वो डिजॉल्व कार्बोनेट्स जो है वो मरीन एनिमल्स उसका अपने शेल्स यानी कि कवच बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो मेजरली जितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है उससे कई ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन उसका उपयोग है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर रेस्पिरेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस फिक्सेशन द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज मॉडरेटेड और इट इज कंट्रोल्ड। देन आफ्टर द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, वातावरण को नियंत्रित करने में क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, यानी कि हमारे क्लाइमेट को, अर्थ के ऊपर जो आबो हवा है जिसे कहा जाता है, उसको नियंत्रित करने में किस तरीके से एटमॉस्फेयर का रोल है उसके बारे में हम जानेंगे। पहली चीज हमें जो मालूम है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि गर्मी को एयर जो है वो जल्दी से एयर के ऊपर आने नहीं देती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो बिकॉज ऑफ दिस ड्यूरिंग द डे टाइम, प्लीज नोट इट, नोट माई वर्ड्स, ड्यूरिंग द डे टाइम द एयर प्रिवेंट्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिन के समय जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है वो क्या करती है, वो एयर तापमान को बढ़ने से रोकती है। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट स्लोज डाउन एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। और रात के समय में वातावरण में से जो गर्मी पूरे दिन जमा हुई है उस गर्मी को वापस एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती है। इसलिए हमारा दिन का तापमान सडनली जो है वो इंक्रीज नहीं हो जाता, और रात के समय जो तापमान है वो इतना ज़्यादा गिर नहीं जाता। इट इज़ वेराई फ्रॉम 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ऐसा कभी हम नोट डाउन नहीं करते कि दिन के समय 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और रात को 0-1-2 डिग्री सेल्सियस है। नो, इट विल नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान का वेरिएशन जो है वो हम सहन ही नहीं कर सकते। सो थैंक्स टू द एटमॉस्फेयर दैट इट विल प्रिवेंट the excess amount of heat to enter into the atmosphere during the daytime, and it will also prevent the amount of heat which is escaping from the atmosphere during the night time. So in this way it will control the climate.
some of the other planets like moon is situated at the same distance from the sun as that of earth. So वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है? In some other planets like moon which is situated at the same distance from the sun like earth, वहाँ पे टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. रात के समय -190 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरिंग द डे टाइम इट विल 110 डिग्री सेल्सियस. यानी कि दिन के वक्त इसका तापमान 110 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के वक्त जो इसका तापमान है मून के ऊपर वो -190 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. सो व्हाई दिस ड्रास्टिक डिफरेंस इन बिटवीन द नाइट टाइम एंड द डे टाइम ऑन द मून? The only reason is that the absence of atmosphere on the surface of moon. So due to the atmosphere absence on the surface of the moon, the temperature varies from -190 degree Celsius to 110 degree Celsius. Okay? So dear students, यहाँ तक आज हमारा कंटेंट रखते हैं. आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि हवाएं, पवन जिसे कहते हैं, विंड्स के बारे में. चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तब तक थैंक यू.